Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of this video lecture is exercise 5.3. In exercise 5.3, only 3 questions are included in the accelerated course. Those 3 questions are question 1, question 3 and question number 5. In each of these questions, you see that an infinite series is given and you need to find out the nth term of each series given in these questions, and you need to find out the sum of n terms of each series which is given in these 3 questions. यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड 2 चीज़ें हैं, एक हमने nth टर्म को फाइंड करना है और एक हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है. आपके पास क्वेश्चन 1, 3 और 5 में सीरीज़ इन्फिनिट सीरीज़ गिवन है. हमने इन इन्फिनिट सीरीज़ का सम नहीं चाहिए, हमें n टर्म्स का सम और nth टर्म चाहिए. तो अगर हम इन सीरीज़ को गौर से देख लें तो ये सीरीज़ हमारे पास न अरिथमेटिक सीरीज़ है, न ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, न हार्मोनिक सीरीज़ है, ना ये तीनों सीरीज़ हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी नहीं है. तो हम तो इन 4 सीरीज़ का सम जानते हैं बाय द फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज. लेकिन यहाँ पे इन सीरीज़ में उस तरह का कोई सीरीज़ नहीं है. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंसेस. कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस में हमारे पास क्या होगा. अगर हम ले लें क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक ऐसा सीरीज़ गिवन है जिसके सक्सेसिव टर्म्स के बीच में अगर मैं डिफरेंस लूँ तो यहाँ से मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा. मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 को कंसिडर कर रहा हूँ. क्वेश्चन 1 कंटेन द सीरीज़ 4 + 13 + 28 + 49 + 76 + and so on. Now this is the series. The required thing in this question is you need to find out the nth term and you need to find the sum of n terms. So sum of n terms is denoted by Sn. You clearly know that if I find out the nth term of this series, then by replacing n by j and applying the summation index started from 1 up to n, so you can clearly get this. So actually this Sn is nothing but this is the summation j runs from 1 up to n aj. So for this sum I also need the general term of this series. So you need to find out the general term first and then you need to apply the summation an index that runs from 1 up to n, so you will get the requirement of the question. But if I perform subtraction between the successive terms, so I get a sequence from that subtraction. For example, a2 minus a1, so this is a2 and this is a1, so that is 13 minus 4, you get 9. a3 minus a2, successive terms, so that is 28 minus 13, so from that you get 15. Then a4 minus a3, so 49 minus 28, you see that the fourth term is 29 and the third term is 28, so from this difference you get 21. a5 minus a4, so from this you get 76 minus 49, so that is 27, and so on. an minus 1 will be the n minus 1 term of the sequence 9, 15, 21, 27 and so on. You clearly see that this is the first term which is obtained by the difference of first two. The second term is obtained from the difference of the second and third. The third term is obtained from the difference of the fourth and third. So similarly,
n minus 1 term will be obtained from the difference of nth and n minus 1 term. So you clearly see that 9, 15, 27, 21, 27 and so on up to n minus 1 term. This is actually an arithmetic progression in which there is a common difference, and that common difference is 6. If you subtract 9 from 15 or 15 from 21 or 21 from 27, so you clearly see that there is a common difference in successive terms of this sequence. So now you can construct this sequence from the difference of the successive terms of the given series. तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास एक सीक्वेंस. सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंसेस. अब हमें इस ए एन की ज़रूरत है. दिस ए एन रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज. हमने ये फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, और फिर यहाँ पे मैं इंडेक्स चेंज करके सम फाइंड करने के लिए समेशन अप्लाई कर दूंगा इस nth या जनरल टर्म के ऊपर. सो दैट इज और रिक्वायरमेंट. सो ये आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंसेस. अब मैं क्या करूँगा, मैं ये आपके पास इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड सो ऑन. इन सारे इक्वेशंस को, दिस इज इक्वेशन नंबर n-1. सो इन सारे इक्वेशंस को अब मैंने ऐड करना है. तो जब ये ऐड करूँगा तो आप क्लियर कट देख सकते कि a2 माइनस a2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a3 माइनस a3 ये कैंसिल हो जाएंगे, a4 माइनस a4 कैंसिल एंड सो ऑन, a5 माइनस a5 के साथ कैंसिल होगा. और इसी तरह यहाँ पे सिर्फ आपके पास रह जाएगा an माइनस a1. रिमेनिंग सारे आपके पास सेम आ रहे हैं विद डिफरेंट साइंस, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड से आपको अरिथमेटिक सीरीज मिल जाएगा. तो व्हेन यू परफॉर्म दैट, तो इसमें आप देख लें. Now I am adding the above equations. I am adding the above equations. So adding the above equations. तो वो ऐड करने से आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा दैट इज an माइनस a1, क्योंकि ये a2 इस a2 के साथ, a3 इस a3 के साथ, a4 के साथ, और फिर इसी तरह जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास an-1 माइनस an-2 होगा. तो ये an-1 के साथ कैंसिल होगा. इसी तरह an-2 ऊपर जो an-2 होगा उसके साथ कैंसिल होगा. तो एट द एंड ये भी आपके पास यहाँ पे a5, तो नेक्स्ट आपका जो इक्वेशन होगा उसमें माइनस a5 होगा. तो ये सारे कैंसिल हो गए. यू जस्ट गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड an माइनस a1, और राइट साइड पे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे. तो ये आपका होगा 9 + 15 + 21 + 27, और ये जाएंगे अप टू n-1 टर्म्स, और ये एडिशन होगी n-1 टर्म्स, क्योंकि आपके पास ये n-1 इक्वेशंस है. ओके, तो नाउ यू क्लियरली सी दैट दिस राइट हैंड साइड, दिस इज द फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज, और इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपके पास n-1 है. तो यू नो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 दैट हाउ यू कैन ऐड दी फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज. सो हमारे पास फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज ये जो आपके पास होगा, s से मैं इसका सम रिप्रेजेंट करता हूँ, वो हमारे पास होता है n/2 2 टाइम्स a1 + n-1 इंटू d. तो यहाँ पे आपके पास an माइनस a1 इज a1 को आप देख लें, a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, सो दैट इज 4. तो इस a1 की जगह पे मैं 4 पुट कर लूँगा, और इस साइड पे आपके पास इसका जो सम होगा वो n-1/2, बिकॉज द नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक फाइनाइट सीरीज वो आपके पास n-1 है. तो ये n-1/2, क्योंकि इस n को इस n-1 से रिप्लेस कर लें. फिर आपका होगा 2 × 9, फिर आपका होगा n-1 इस n की जगह पे भी n-1 हो जाएगा. आप इसको देख रहे हैं, ये n-1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-1 है, और d आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 है. तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लें तो आपको nth टर्म मिल जाएगा. यू कैन जस्ट, ये n-2 होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 18 आ जाएगा,
फिर नीचे डिनोमिनेटर 2 आप इनका एलसीएम ले लें, n-1 से मल्टीप्लाई कर लें। सो जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन कैलकुलेशन से आपको जो nth टर्म मिलेगा दैट इज़ 3n² + 1। सो दैट इज़ माई nth टर्म, दिस इज़ द nth टर्म, दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज़। ये जो आपका सीरीज़ था ये इसका nth टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस की मदद से मैं nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ। आपने मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या है, आपका जो गिवन सीरीज़ है उसको आपने देखना है। ये गिवन सीरीज़ ना अरिथमेटिक है, ना ज्योमेट्रिक है, ना हार्मोनिक है, ना अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक है। ये हमारे पास कोई ऐसा सीरीज़ है जो इन 4 कैटेगरीज में लाई नहीं करता। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने एक सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड किया। उन डिफरेंसेस से आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा था। बाज़ औक़ात इन डिफरेंसेस से आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बनेगा। तो जब डिफरेंसेस से अरिथमेटिक सीक्वेंस बने या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बने तो वहाँ पे उस गिवन सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करने के लिए प्रोसीजर यही होगा कि उन तमाम इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा उसमें या ज्योमेट्रिक सीरीज़ आएगा फाइनाइट या अरिथमेटिक सीरीज़ आएगा फाइनाइट। अगर डिफरेंसेस से जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट हो रहा है अगर वो अरिथमेटिक है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको nth टर्म की इवैल्यूएशन में अपने गिवन सीरीज़ की nth टर्म की इवैल्यूएशन के लिए फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ की सम आपको चाहिए, दैट यू नो फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। और अगर आपके पास डिफरेंसेस से आपको मिला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो उस केस में nth टर्म की इवैल्यूएशन के लिए यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ यूजिंग चैप्टर नंबर 4। तो ये आपके पास, लेकिन यहाँ पे टर्म्स n-1 है क्योंकि ये n-1 इक्वेशन है। तो ये nth टर्म, द रिक्वायर्ड nth टर्म। अब मुझे n टर्म्स का सम चाहिए। तो अगर मुझे n टर्म्स का सम चाहिए तो आपके पास मैं इंडेक्स को चेंज कर लूँगा n से j में और इस j के ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँगा समेशन j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n aj। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपको 10 टर्म्स का सम चाहिए तो इस n की जगह पे फिर तुमने 10 रखना है और इस साइड पे ये 3 समेशन j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n j² + 1 होगा। तो आप सबको पता है कि जब आप इसी समेशन को ओपन करते हैं सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और वो सम हमारे पास होता है n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, और ये सम इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये देखिए ये सम जो होगा ना ये इस टर्म के ऊपर अलग और इस कांस्टेंट के ऊपर अलग अप्लाई होगा। सो समेशन j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n 1। तो आपने समेशन को ओपन करने में j को स्टार्ट करना है 1 से n तक और वहाँ पे हर एक स्टेप में आपको 1 मिलेगा बिकॉज दैट इज़ द जनरल टर्म। तो ये n टाइम्स 1 होगा। इनका एलसीएम ले लें। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। सो ये तरीका है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के साथ में यहाँ से शेयर करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें क्वेश्चन 2। नाउ question 2, this is question number 3 which is included in the accelerated course. Question 2 is not included, that is excluded from the accelerated course. तो आप देख सकते हैं कि इस सीरीज़ का मुझे nth टर्म चाहिए और nth टर्म के साथ साथ इसी सीरीज़ का मुझे n टर्म्स का सम चाहिए। तो वो n टर्म्स का सम जस्ट इंडेक्स को चेंज करके ये आपके पास इसी तरह होगा। तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। अब nth टर्म को फाइंड करने के लिए आप सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ले लें। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से 6 आएगा, थर्ड माइनस सेकंड से आपके पास 8 आएगा, फोर्थ माइनस थर्ड से आपके पास 10, फिफ्थ माइनस 4 से आपके पास 12 और इसी तरह n-1 an-1 से आपके पास n-1 टर्म जनरेट होगा क्योंकि पहले दो की सब्ट्रैक्शन से आपके पास पहला टर्म, फिर दूसरे तीसरे की सब्ट्रैक्शन से दूसरा टर्म, चौथे और तीसरे की सब्ट्रैक्शन से तीसरा टर्म। तो an और an-1 से आपके पास n-1 टर्म जनरेट होगा इस सीक्वेंस का। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देख लें सो दैट इज़ द arithmetic sequence in which there is a common difference 2 and the first term is 6। तो ये आपने उसी तरह करना है। इन तमाम इक्वेशंस को आप ऐड कर लें तो आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड पे
an-a1 रहेगा, रिमेनिंग सारे एज इट इज़, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया उसी तरह ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और राइट साइड पे आपके पास एक फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ आपको मिल जाएगी जिसमें टर्म्स n-1 होंगे। तो इसको इवैल्यूएट कर लें। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास आए जिसमें n-1 टर्म्स। तो आपका जो सम के लिए फार्मूला है a(n = n डिवाइड बाई 2 टाइम्स a1 प्लस n-1 इंटू 2। इनमें n को n-1 से, बिकॉज देयर आर n-1 टर्म्स। a1 आपके पास 6 है, यहाँ पे n को n-1 और -2, कॉमन डिफरेंस इज 2। इसको कैलकुलेट करके यू गेट दिस nth टर्म। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स, सो जस्ट रिप्लेस दिस n बाई j, और तो ये आपके पास इसी तरह होगा। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस इन विच वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स। और यहाँ पे समेशन j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n अप्लाई कर लें तो ये दोनों के ऊपर अलग अप्लाई होगा। ये आपको पता है कि इफ़ यू ओपन दिस कंपैक्ट फॉर्म, सो यू विल गेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, और उनका सम यही होता है। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, इसका सम यही है। इनका एलसीएम ले लें, यू गेट द रिक्वायर्ड सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, एंड दैट सीरीज इज दिस। वो आपके पास ये सीरीज। तो दैट इज द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देख लें, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज द सीरीज, you need to find out the nth term of this series। आपको इसकी nth term की ज़रूरत है और आपने इसका n terms का सम फाइंड करना है। तो n terms का सम असल में आप nth term का इंडेक्स जब चेंज करते हैं और उसके ऊपर आप समेशन अप्लाई करते हैं i runs from 1 up to n, तो यू गेट द सम ऑफ फर्स्ट n terms। अगर n terms की बजाय आपको कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms, तो ये आपका इंडेक्स 1 से लेके फिर 10 तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब डिफरेंसेस की सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, तो हमें जो सीक्वेंस मिला वो इस केस में आपके पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दैट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बिकॉज 12/6 or 24/12 or 48/24 you get 2, a common ratio. So from the differences you get geometric progression in this case। आपने उसी तरह तमाम इक्वेशंस को ऐड करना है, तो ये an-a1 आएगा, यहाँ पे a2 -a2 a3 -a3 सारा कैंसिल होगा। राइट साइड पे आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज कंस्ट्रक्ट होगी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होंगे, बिकॉज यू आर एडिंग n-1 इक्वेशंस। Here the common difference is 2, common ratio is 2, and the number of the terms in n-1 and the first term is 6। तो आप सबको पता है कि from chapter number 4 how we can add the finite geometric series with common ratio 2 and the number of terms in n-1 and the first term is 6। वो आपके पास इसी तरह होता है। This formula is already known to you from chapter number 4। इसकी डिटेल से हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज़ को प्लग करना है। a1 6 से रिप्लेस होगा, r2 से रिप्लेस होगा, n-1 से, बिकॉज द नंबर ऑफ द टर्म्स हेयर्स आर n-1। तो इनकी कैलकुलेशन करके यू गेट दिस द रिक्वायर्ड nth टर्म। ये आपका रिक्वायर्ड nth टर्म आ गया। इस nth टर्म के अंदर आपने, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये इस सीरीज का nth टर्म है। और अब यहाँ पे इस एंड, ये जो आपका n है इसको j से रिप्लेस करके ये आपके पास इंडेक्स होगा। इसके ऊपर आप समेशन रन कर ले 1 से n तक, 1 से n तक वो समेशन रन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सम इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग। तो ये 6, अगर इसको मैं ओपन कर लूँ सो यू गेट दिस। ये आपको पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। और यहाँ पे इस सम को ओपन करोगे तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 अप टू 3 आएगा, और वो n टाइम्स आएगा, बिकॉज समेशन रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। तो ये 3 टाइम्स n में इसको लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच द कॉमन रेशियो इज 2 and the first term is 1 and the number of the term and the nth term is 2 power n-1। तो वो फार्मूला मैंने यूज़ किया है इस सम के लिए। आपको चैप्टर नंबर 2 से ये क्लियर कट पता है। तो इसके मुताबिक इसका सम हमारे पास होता है 2 power n-1 इसका सम। तो 6 × 2 power n-1 माइनस 3n, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी करते हो या एज इट इज छोड़ते हो, तो ये आपका रिक्वायर्ड सम है n टर्म्स का, आपकी गिवन सीरीज का, जिनके सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस से आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पे दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। यहाँ पे
आपकी जो गिवन सीरीज़ थी तीनों के तीनों जो आपकी एक्सेलरेटेड कोर्स में इंक्लूड थी, उनमें कोई भी सीरीज़ न अरिथमेटिक सीरीज़ थी, न ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी, न हार्मोनिक सीरीज़ थी, ना आपके पास वो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी। तो ये एक स्पेशल किस्म की सीरीज़ थी जिनके सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जब हमने डिफरेंस फाइंड किया तो वहाँ से या हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा। फिर हम उन तमाम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वी गेट द nth टर्म और उस nth टर्म की इंडेक्स को चेंज करके समेशन अप्लाई करते हैं एंड द इंडेक्स रन्स फ्रॉम 1 अप टू n, क्योंकि हमें nth टर्म के साथ साथ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो दैट इज़ all about the exercise 5.3. Thank you.